Then I will share my screen with you and we are starting the class. I cannot wait everybody. It's not the way. The time is given to you. Time is given to you 8:40. You should be 5 minutes before 8:40. If not 5 minutes before, at least at 8:40, everybody should be there. No problem. We'll continue with this. जितने बच्चे हैं उतने से करेंगे. Now you can see question number 1 and 2 exercise 5.6. We have done question number 1 as Sonika has told me. Now question number 2 we'll discuss. It is again on the type of triangles. We are given some conditions here and we have to find which type of triangle it is. Match the following it is. Match the following measure of triangle is given. We have to match with the type of triangle. Okay, let's come to the first part. Three sides of equal length. When in a triangle, three sides are equal, then that triangle is called. What is the name of that triangle? I think you can tell Sir, me. equilateral. इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल. बेटा सारे बोला करो, ये नहीं कि एक बच्चा बोले, सभी बोला करो. बोलने से क्या होता है कि इट विल हैव अ कंप्लीट इफेक्ट ऑन योर माइंड. बड़े आराम से आपके माइंड में आ जाएगा ये कि ये थ्री साइड्स है, इक्विलेटरल है. ये थोड़ा सा मैचिंग हो जाती है. बोलने से ही होता है. चुप नहीं बैठे रहना होता बेटा, आपको बोला होता आंसर. सर Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा. नाउ जॉइन द क्लास. थ्री साइड ऑफ इक्वल लेंथ इक्विलेटरल. गुड. Now, two sides of equal length. In that case, the type of triangle is Sir, isosceles. isosceles. Only Sonika, you are speaking. I think nobody else is speaking. That is very bad. Amrita, ये सारे बच्चे जितने भी हैं, ये बेटा बोला करो. चाहे आपको आंसर आता है, लेकिन you have to speak. Okay. Three side equal length equilateral and two side equal length isosceles. Okay. Now all the sides are of different length in a triangle. All sides are of different length. Then that triangle is called, which type of triangle it is? Scalene. Scalene triangle. Scalene triangle. मैं यही बोल रहा हूँ कि सारे बोला करो. It looks good. ये मेरे को लगता है कि सभी जो क्लास में इंटरेस्टेड है. Otherwise, I see that I don't find any interest. बच्चे जो you are not interested, then how I can teach? I find interest when you are speaking, when you are responding. Okay. Okay, on the basis of side, now you know three sides of equal length, equilateral, two sides equal length, isosceles, all sides are different length, scalene. It is about the sides. Now, depend upon the angles, type of triangle we have to tell. In a triangle, if three acute angles are there, in a triangle, all the angles are acute angle. That triangle, that type of triangle is, can you tell me now? Sir, acute angle. Acute angle, yes, acute angle triangle. I request you to please speak all. सभी बोलो बच्चे, ऐसे नहीं होता. Three acute angles mean that is the acute angle triangle. अगर आपका आंसर यहाँ पर रॉन्ग भी हो जाता है ना, तो यहाँ पर बेटा आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी. रॉन्ग जब हम डिस्कशन करते हैं ना, इसमें बेटा मिस्टेक हो सकती है. मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है. डोंट वरी अबाउट दैट, मेरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा. बट यू हैव टू स्पीक योर आंसर. गलती करेंगे आपको राइट आंसर मार्क चल जाएगा, वो गलती हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी. अगर हम बोलेंगे कुछ नहीं, विल बी इनर्ट, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो दैट इज नॉट गुड फॉर अस. ओके. थ्री acute angles mean that is a acute angle triangle. When there is one right angle, अगर एक ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल है, that is called a right angle. Right angle. Right बेटा, right angle. Right angle. शाबाश बेटा, सारे से बोला करो. Right angle triangle. Now, if there is a one obtuse angle, then in that case the triangle is called Obtuse angle. obtuse angle triangle. Shabash, obtuse angle triangle. Now we are at the last part of it. One right angle with two sides of equal length. Two factors are given. Right angle भी given है, two sides equal है, ये भी given है. Now, what should be the type of this triangle? Sir, isoscale right angle. Sir, isosceles. Correct pronunciation is isosceles. Isosceles right triangle. Why isosceles? Because two sides are equal. Why right angle? Because one angle is right angle. Isosceles right angle. Isosceles right angle. अगर आपको वर्ड प्रोनाउंस करने में मुश्किल होती है ना, तो प्रोनाउंस इट इन फ्रंट ऑफ यू मिरर.
in front of mirror you pronounce it. एक दो बार बोलोगे अपने आप वर्ड ठीक हो जाएंगे, because you have to learn each new word each day. आपको कुछ ना कुछ तो नया सीखना ही होता है, तो कोई ना कोई चीज तो नहीं आती है, अगर प्रॉब्लम आती है you can practice in front of your mirror. Okay, I think question number 2 is clear to you. Very easy question for you. Now let's move to question number 3. There are some figure given. कुछ फिगर गिवन है हमको यहाँ पे, ये नहीं मीन्स ये तो 5.9 आ गया ना, 5.6 में some figures are there. We have to identify the name of that triangle. This is the figure. Yes. Name each of the following triangle in two different ways. जितने भी ये triangles बने हुए ना, we have to name them, but in two different ways. So what are the two different ways? One is on the base of side. That is one way. Second way is on the base of angle. Let me tell you from the first example. मैं एक example आपको बता देता हूँ. Then next will be easy for you. Now look at this triangle carefully. Look at the angles. किस measure क्यों होते हैं? You can see that this all angle are acute angles. ये सारे के सारे angle है acute angle है. So we can name this triangle as acute angle. But the question is that we have to name in two different ways. Acute angle के बेस पे तो sorry angle के बेस पे तो होगा ये acute angle है. अब side के बेस पे क्या होगा? यहाँ पर दो side equal हैं. One side is different, two sides are equal. According to side, this is an isosceles. So दो acute angle isosceles triangle. You will name in this way acute angle isosceles triangle. Acute because all angles are acute. Isosceles because two sides are equal. Acute angle isosceles triangle. यहाँ acute isosceles triangle आप ऐसे ही बोल सकते हैं इसको. ये two different ways हो गए. Angle के बेस पे भी हो गया, side के बेस पे भी हो गया. Now let's come to B part बेटा. You can see here one angle is a right angle. एक angle right angle है. And sides are different. Angle right है, side different है, तो two way कौन से हो गए? It is a right angle scalene triangle. ठीक है ना? वो क्या हो गया आपका? Side के बेस पे भी हो गया, angle के बेस पे right angle isosceles, sorry, right angle scalene triangle. Scalene why? Because all sides are different. यहाँ right angle भी है, side different भी है, right angle scalene triangle. तो third बेटा यहाँ पर क्या है? One angle is obtuse and two sides are equal. Now I want this answer from you. मैं आपसे आंसर चाहता हूँ ये वाला. Sir, obtuse angle and isosceles triangle. Angle isosceles triangle. Very good. Because both the conditions are right. Obtuse angle भी है, isosceles भी है. दोनों sides are equal. Obtuse angle isosceles triangle. Good. If I come to this D part, now what do you recognize from here? यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है? Right angle. Sir, right angle and isosceles triangle. Right angle isosceles triangle. Because right angle is there, two sides are equal. Right angle isosceles triangle. ठीक है? If we move to E part, now you can see the dimension of this triangle and the angle of this triangle, and now you can decide. Acute angle. Sir, equilateral and acute angle. Acute angle. Triangle. शाबाश बेटा, दो सबका आंसर ठीक है. ये acute angle equilateral triangle. Acute angle equilateral triangle because all the angles are acute and all the sides are of equal length. And one more thing I want to tell you here, in every equilateral triangle, लेंथ कोई भी हो जाए, each angle is of 60 degree. Equilateral triangle में हर एक जो एंगल होता है ना, वो होता है 60 डिग्री का होता है. This is 60, this is 60, and this is also 60. Now, what is the reason behind it? I also tell you, because in a triangle, the sum of all the angle is 180 degree. इस triangle के जितने भी एंगल होते हैं ना, उनका सम होता है 180. तीनों एंगल है, तीनों इक्वल है, so it would be 180 divided by 3, that is 60 degree. It will come in your next classes. 7th में आएगा ये. But I am telling you earlier, each angle of an equilateral triangle is 60 degree. This is for your knowledge. कहीं भी पूछता है आपको कितना एंगल होता है तो आपको मालूम होना चाहिए. ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री. ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है. जब सारी साइड इक्वल होती है ना, तो इसके सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं. और इट इज एन एक्स्ट्रा फैक्ट फॉर यू. You have to keep it in your mind for your next class.
Now move to this F part. You can see here which type of angle it is, which type, now sides here. Sir, obtuse. Sir, Sir, obtuse angle. Sir, obtuse angle and scalene triangle. Yes, obtuse angle, scalene triangle. Very good बेटा, obtuse angle, scalene triangle. शाबाश, good. इसके बाद बेटा यहाँ पर इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक करने हैं. दिस क्वेश्चन इज फॉर एक्टिविटी. ये मैं क्वेश्चन आपको दूंगा एक्टिविटी के लिए. क्वेश्चन नंबर 4. ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल यूजिंग मैच स्टिक. मैच स्टिक आपके घर में होती हैं. सम आर शोन हियर. ये आपको ना ये इसकी एक्टिविटी करके मैं आप दूंगा आपको, वो बनानी है. ये दिस इज एक्टिविटी क्वेश्चन. ये बुक में नहीं करते, सॉरी कॉपी में नहीं करते, होमवर्क में नहीं करते और ना एग्जाम में करता है. इट इज एन एक्टिविटी क्वेश्चन और इससे एक्टिविटी के मार्क्स करते हैं. ये मैं जब नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में ना आपको ये एक्टिविटी देने वाला हूँ. यू हैव टू मेक एक्टिविटी ऑन अ चार्ट एंड यू हैव टू शो दिस एज ए प्रोजेक्ट. ये आपको प्रोजेक्ट मिलेगा ये इसका ना, मैथ स्टिक से आपको बनाना है. ये वाला बड़ी सिंपल इट इज, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये. इट्स हेल्प इज आल्सो गिवन इन योर नोट व्हिच आई हैव सप्लाइड टू यू. तो क्वेश्चन नंबर 3 तक ही हम लोग जो ना उसमें नोटबुक में करना है. बाकी क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज एक्टिविटी. अगर तो स्कूल लगता है तो वी विल डू इन scrapbook. Otherwise, if there will be online education, then I will give you the project of it. आपको इसका प्रोजेक्ट बनाना है. So we are leaving this question for activity. Now we are moving to next exercise. क्या इतनी देर बता रहे हैं? 5.7. 5.7 बेटा ये this exercise is very important exercise. ये समझने में थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा. आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा. कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा इसमें चाहिए, क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए. और ये सारे फैक्ट्स जो है ना आपको 10th तक काम आने वाले हैं. नॉट टू 7th, 8, 9, 10 तक ये कॉन्सेप्ट चलेंगे आपको. ये अभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए ना तो आपको जो इसका एडवांस लेवल सीखने में जो बड़ा इजी रहेगा. नहीं तो अगर आप बेसिकली नहीं ना आता होगा और इसका एडवांस लेवल सीखने में बहुत मुश्किल होने वाली है. हमको इसके बेसिक फैक्ट जो है ना, दीज आर द बेसिक फैक्ट्स. तो वी शुड नो द बेसिक फैक्ट ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल. यहाँ पर गिवन है कुछ फैक्ट्स हैं, आपको ध्यान से समझना. और आपको कोई चीज़ नहीं ना समझ आएगी तो आपको पूछनी है. ये नहीं बोला सर हो गया, हमने कवर कराना था, सिलेबस कवर कराना था, कवर हो गया. नो, जब तक आपको आएगा नहीं ना, मेरी साइड से नहीं हुआ ये. आई वांट ईच यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इट. ओके, लेट्स कम टू दिस फर्स्ट क्वेश्चन. से ट्रू और फॉल्स. वी आर गिवन सम स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट बेटा हमको बड़े ध्यान से समझनी है और इसके जो कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठाने भी हैं. What is rhombus, what is parallelogram, what is square, what is rectangle, what are the angles there, what are the sides there, what is the property when opposite sides are equal, when all sides are equal. ये concept आपको mind में बिठाने हैं and for your lifetime. So let's do this. Come to this first part. Say true and false. बेटा यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स बनाना तो बड़ा इजी है. दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, क्रैमिंग कर लेते हैं. लेकिन क्या है कि इसका बेसिक फैक्ट पहचानना आपका बहुत जरूरी है. Each angle of a rectangle is a right angle. You see, हमसे क्वेश्चन, each angle of a rectangle is a right angle. तो मैक्सिमम बच्चे होंगे इनको रेक्टेंगल का आइडिया याद में आता है फिर भूल जाता है. तो फॉर योर कंफर्मेशन आई एम शोइंग यू अ गुड फिगर ऑफ रेक्टेंगल. फ्रॉम देयर यू कैन सी वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. हम students are saying this is right, but let's see. I am giving this figure to you. This one. A rectangle is here. Now you can watch it very carefully at each corner of this rectangle. Each corner you can see here, and you will find that each angle is of 90 degrees. सारे के सारे एंगल यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री है ना? I think you can see from here. Everybody is seeing? Yes, sir. तो बेटा इन द फर्स्ट इज ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल. तो ये हमको यहाँ से मालूम चल रहा है कि ये ठीक है, ट्रू है. जैसे ही मैं रेक्टेंगल वर्ड बोलता हूँ या आप जो पढ़ते हैं आपके माइंड में फटाफट ये फिगर आ जाना चाहिए. यस, दिस इज द रेक्टेंगल, दीज आर द एंगल एट द कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल. ओके. सेकेंडली बेटा यहाँ पर ये देखो, इसकी प्रॉपर्टी देखो कि इसकी जो अपोजिट साइड होती है ना, जो सामने वाली साइड होती हैं, these are always equal. सारी साइड नहीं बोल रहा हूँ मैं, only opposite side. Opposite sides of a rectangle are always equal. देखो side 2 is equal to side 4 होगी. सेकंड क्वेश्चन में ट्रू है. अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं आ रहा हूँ बेटा, मैं थोड़े से फैक्टर बता रहा हूँ.
क्वेश्चन में बाद में आऊंगा मैं। साइड 1 विल बी इक्वल टू साइड 3, साइड 2 विल बी इक्वल टू साइड 4। ये होता है रेक्टेंगल में, ऑपोजिट साइड इसकी इक्वल होती है। मैं आगे थोड़ा सा बेटा इसको क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। तो ये ट्रू होना चाहिए, फाल्स होना चाहिए? ऑपोजिट True. ट्रू, यस Sir, true. True. yes, good, शाबाश, it is true. Each angle of rectangle is right angle, it is also true. The opposite sides of rectangle are equal in length, it is also true. Next come the diagonal of a square are perpendicular to one another. This will be new to you. अब diagonals क्या है, square क्या है, perpendicular क्या है? We should know the meaning of this, all these. Diagonals are the line segment meeting the opposite end point of a quadrilateral. Here it is square. अब स्केयर क्या है? स्केयर इज ए क्वाड्रिलेटरल विच हैव ऑल साइड इक्वल। इसके लिए बेटा मैं आपको ना बोर्ड पे ले चलता हूँ, मैं बोर्ड पे समझाता हूँ आपको। इसका है तो ये ट्रू फॉल्स ही है, लेकिन आपके समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द स्केयर। स्केयर इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। स्केयर ऐसा होता है कि उसमें जैसे रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 के होते हैं ना, स्केयर में भी क्या होता है कि सारे एंगल जो होते हैं ना दैट आर ऑफ 90 डिग्री। और स्केयर की एक और प्रॉपर्टी है, व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? इसकी सारी साइड इक्वल है। इसकी 4 साइड होती है ना, 1 2 3 4, दिस ऑल साइड्स आर इक्वल। दिस इज अ बेसिक फैक्ट ऑफ अ स्क्वायर। इसके सारे एंगल जो है 90 के हैं और इसकी साइड साइड क्या है? इक्वल है। So that is the square. And you know the meaning of perpendicular? Perpendicular means the line segment making an angle of 90 degree. That is the perpendicular. Now I think you can see a graphical paper on my screen. दिखाई दे रहा है बेटा आपको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. I will make a square. मैं आपको ना स्क्वायर बनाता हूँ। स्क्वायर में क्या होता है कि सारी साइड इक्वल होती हैं। मैं यहाँ पे स्क्वायर बनाता हूँ ना। स्क्वायर में क्या है? साइड साइड इक्वल है। If I am taking this 1 2 3 4 5 point this side, I have to take 1 point. This is a square. Means all sides are equal. You can see 1 2 3 4 5 square, 1 2 3 4 5 square, 1 2 3 4 5, and 1 2 3 4. Or if one is 5, other are 5. If one is 6, other is 6. Means all sides are equal. This is a square. Square का बेटा वर्ड आते ही आपके माइंड में ऐसा फिगर आपके माइंड में आना चाहिए। रेक्टेंगल का मैंने बताया था आपका ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, साइड इक्वल होती है, लेकिन स्क्वायर में क्या है? ऑल sides of square are equal and each angle is 90 degree. You can see here सारे एंगल इसके 90 डिग्री के, ठीक है ना? दिस इज नाउ द क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन इज द परपेंडिकुलर द डायगोनल्स। अब डायगोनल्स क्या होते हैं मैं बता देता हूं आपको बेटा। द लाइन सेगमेंट मीटिंग द ऑपोजिट एंड, ये है डायगोनल। एनी क्वाड्रिलेटरल हैज 2 डायगोनल, इसके 2 डायगोनल हो जाएंगे। दो डायगोनल हो गए इसके। क्वेश्चन इज दैट आर दे कटिंग एट 90 डिग्री? क्या जो ये वाला एंगल है वो 90 है कि नहीं है? आप क्या देख रहे हैं? इट इज 90 डिग्री और नॉट दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल। क्या ये सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के आ रहे हैं? आप क्या देख रहे हो? No, sir. यस सर। No, sir. चलो बेटा हम No. चेक कैसे करते हैं? चेक विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर, है ना? प्रोटेक्टर चेक करते हैं ना, तो हम देख लेते हैं यहाँ से। देखो अगर मैंने यहाँ पे रखा तो कौन सा एंगल आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है ना? Yes, sir. बेटा दिस इज अ, so they are cutting perpendicularly. If the angle is 90 degree, it means these are cutting perpendicularly. तो क्वेश्चन हमारा ये था ना, ऐसे क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन वाज दिस, all the diagonals of a square are perpendicular to one another. तो हमने अभी देखा बेटा कि यहाँ पर जो उनका डायगोनल एंगल था वो क्या था? 90 डिग्री था। तो इट इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आप दोबारा देख लो उसको, फिगर को दोबारा देख लो बेटा। ये देखो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल मान लो ना, ये भी 90 है, ये भी 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा। इट मीन दैट दे आर कटिंग एट राइट एंगल, सो दे आर perpendicular to each other. The D state, the C statement is also right, also
ट्रू। नाउ लेट्स कम टू ए। हो सकता है आपको बेटा एक बार में समझ में नहीं आए, हो सकता है ये ज्यादा कंफ्यूजिंग हो ना, इसको बार बार पढ़ो। मैंने जो आपको सोल्यूशन दी है ना, गो थ्रू इट मेनी टाइम्स, यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। इवन देन यू फेस प्रॉब्लम, आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, I am here to clear your doubt, every doubt. You read it many times. If it is okay, then no problem. Even then you are getting doubt, then ask me. Now D part, all the sides of rhombus are of equal length. Now this fact I have to tell you. In a sphere, there are all the sides are equal. In the rhombus, the same case. In the rhombus also, all the sides are equal. First of all, you should know what is rhombus होती क्या है, वो मैं बेटा बताता हूं आपको। लेट मी शो यू व्हाट इज रोम्बस। रोम्बस, इन द रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड इक्वल होती हैं। यहां से मैं ले लेता हूं रोम्बस को। आई एम टेकिंग वन रोम्बस, ये देखो कोई भी ऐसी हो जाती है, देखो ये लाइन छोड़ दो, ये लाइन नहीं है, बाकी दिस इज रोम्बस, दिस इज रोम्बस। इसमें बेटा सारी साइड इक्वल होगी। दिस इज 7, दिस इज आल्सो 7, दिस इज आल्सो 7, दिस इज आल्सो 7। टू क्वाड्रिलेटरल्स आर देयर, वन इज स्क्वायर एंड वन इज रोम्बस। दोनों में क्या होता है, सारी साइड इक्वल होती हैं। डिफरेंस इज दैट इन स्क्वायर ईच एंगल इज 90 डिग्री। स्क्वायर में हम देखा कि सारे एंगल यहाँ पर ना 90 के बनते हैं, लेकिन रोम्बस में ऐसा नहीं बेटा, ईच एंगल इज नॉट ऑफ 90 डिग्री। बस यही डिफरेंस है। रोम्बस की सारी साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, स्क्वायर की भी इक्वल होती हैं, बट डिफरेंस ये है कि स्क्वायर में हर एंगल जो 90 का होता है, रोम्बस में हर एक एंगल 90 का नहीं होता। इट कुड बी ऑफ different length, different sorry measure, sorry different measure का होता है। I think now you have seen the figure of the rhombus and you can decide that all the sides of rhombus are of equal length. It is also true. Yes, ठीक है जी। ये चारों की चारों स्टेटमेंट अभी तक जो हमने की है ना, अभी ठीक है ये। अभी देखते हैं फिफ्थ स्टेटमेंट क्या वो भी ट्रू है या वो फॉल्स है। All the sides of parallelogram, अब बड़ा डिफरेंट आ रहा है। पहले हमने रेक्टेंगल किया, रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं और अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। फिर स्क्वायर आया, स्क्वायर में क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। देन वी हैव मूव्ड टू रोम्बस इन व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल बट एंगल्स आर नॉट ऑफ 90 डिग्री। द नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, व्हिच हैव अ फोर साइड। पैरेललोग्राम में भी क्या है, फोर साइड होती है। हमें पूछा है कि क्या इसकी साइड साइड इक्वल है। पहले आप बेटा इसका एग्जांपल देख लो, फिर उसके बाद मेरे को आप खुद बताओ कि हाँ ये इसकी लेंथ इक्वल है कि नहीं है, सारी साइड इक्वल है कि नहीं है। मैं यहाँ पर पैरेललोग्राम ले रहा हूँ और आपको पैरेललोग्राम बना के बता रहा हूँ। सॉरी ये रोम्बस बन गया, दिस इज रोम्बस। ये नहीं बनेगा कि मैं पैरेललोग्राम बनाता हूँ। चलो पैरेललोग्राम, दिस इज स्क्वायर, नाउ आई एम टेकिंग अ पैरेललोग्राम। Yes, this is a parallelogram. अब आप बताओ मेरे को कि all the sides of this figure is equally length or not? No. No, Sir, sir. Yes, only opposites है equal है। opposite जो है ना इसकी लेंथ वो इक्वल है, सारी साइड इक्वल नहीं है। ठीक है बेटा, आपने बिल्कुल ठीक दिखा। तो दिस इज फॉल्स। ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ इक्वल लेंथ है ना, इक्वल लेंथ नहीं है बेटा, ओनली ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, सारी साइड इक्वल इसकी नहीं होती है। इट इज फॉल्स। शाबाश। अब लास्ट वाला आ जाता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम इज आल्सो क्वाड्रिलेटरल। ट्रेपीजियम में क्या है कि इसकी सिर्फ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल होती हैं। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल सारी नहीं होती, दो पेयर होती है ना, चार साइड होती है। आप खुद ही देख लो बेटा, आप खुद देख डिसाइड करो। मैं आपको यहाँ पे ट्रेपीजियम बना देता हूँ, यहाँ पर ना एक ट्रेपीजियम बना देता हूँ, फिर आप खुद डिसाइड करो कि क्या इसकी साइड पैरेलल होंगी या नहीं होंगी। अब देखो बेटा, ये होती है ट्रेपीजियम। दिस इज ट्रेपीजियम।
तो क्या इसकी सारी साइड पैरेलल हैं? देखो ध्यान से देखो फिगर को, क्या पैरेलल में सामने सामने होती है ना, ये एंगल इक्वल होनी चाहिए। दिस इज false. This is a false, yes, Peter. This statement is also all sides are not parallel. ऑपोजिट साइड भी पैरेलल होती है, इसकी साइड कोई पैरेलल होती बस होती नहीं, एक पेयर होता है पैरेलल होता है, बाकी सेकंड पेयर पैरेलल नहीं होता है। इट इज आल्सो फॉल्स, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ट्रापेजियम आर पैरेलल, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस इज नॉट करेक्ट। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ भी गया होगा, आधा समझ में आया होगा, या 70% समझ में आ गया, 30% थोड़ा बहुत डाउट रहे होंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, गो थ्रू योर नोट्स, यू विल गेट मोर क्लियर आइडिया। बस ये है कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का फिगर आपके माइंड में होना चाहिए, अगर स्क्वायर है स्क्वायर का फिगर माइंड में होना चाहिए, रोम्बस का फिगर क्या है, पैरेललोग्राम क्या है, ट्रेपेजियम क्या है। इफ यू हैव दिस फिगर इन योर माइंड, यू विल नेवर बी मिस्टेकन, कोई गलती नहीं आपसे होने वाली नहीं। हमें गलती तभी लगती है जब हम इंटरमिक्स कर देते हैं फैक्ट्स, स्केल को पैरेललोग्राम से मिक्स कर दिया, मीन आधा ध्यान हमने दिया होता, आधा ध्यान हमने नहीं दिया होता। तो टू क्लियर दिस फैक्ट वी हैव टू रीड इट अगेन एंड अगेन। और इसको बेटा अभी आप अगर आपने सीखा ना, इसकी प्रैक्टिस आप कॉपी पे करो, करके देखो इसको। अभी तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये बिल्कुल भूल जाने वाला है आपको, मैं बोल रहा हूँ। इसलिए इसको आज आपने कॉपी पे करना ही करना है, चाहे आप 2 बार करो लेकिन करना है। और इसको बिल्कुल, ये कौन बोल रहा है, क्या बोला मेरे को, किसने बोला? कुछ कुछ पूछना बेटा आपने, किसी ने कुछ पूछना है बेटा, कुछ ना कुछ पूछना। ओके, इफ देयर इज नो डाउट देन वी शुड मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या हमको कुछ रीजन देने हैं, गिव रीजन फॉर आर फॉलोइंग। ये क्वेश्चन फर्स्ट में समझ में आ गया ना आपको, तो सेकंड क्वेश्चन उसका एडवांस लेवल जिसको समझना आप बोल रहे हैं, ये जैसे गेम का एक एडवांस लेवल होता है ना, इट इज द एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इसके लिए क्या है कि फिगर्स का माइंड में होना बहुत जरूरी है। फिगर कौन हमारे माइंड में होगी तो वी कैन आंसर इट वेरी इजीली। जैसे गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग है, ए पार्ट पे आ जाते हैं सबसे पहले। अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल रेक्टेंगल। इसका मीनिंग ये है कि क्या स्क्वायर और रेक्टेंगल में कोई ना कोई सिमिलरिटी है? Yes, sir. स्क्वायर, व्हाट इज दैट सिमिलरिटी बेटा? Because even rectangle have 4 sides and even square has 4 sides. ओके, बोथ हैव 4 साइड एंड एनी मोर फैक्टर? ठीक है, 4 साइड ठीक है, रेक्टेंगल भी 4 साइड है। Sir, they have an angle of 90 degree. Yes, both of them have angle of 90 degree at each corner. सबकी इन दोनों के कॉर्नर पे ना हर एक एंगल जो है वो 90 का है। स्क्वायर में भी क्या होता है, सारे एंगल 90 के होते हैं। रेक्टेंगल में भी क्या होता है, सारे एंगल 90 के होते हैं। सो अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रेक्टेंगल। इसका रीजन जो है मैंने आपको जो नोट्स दिया उसमें लिखा हुआ है, बट आपको समझना है बेटा, यहाँ से पहले समझना है, फैक्ट समझ लेना है। लिखने वाला काम बेटा आप कर लेंगे, नोट से कर लेंगे, लिखना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। बिकॉज स्क्वायर में क्या होता है, आपको मैंने भी दिखाया बेटा अभी यहाँ पे स्क्वायर में देखो, इसके सारे एंगल जो है ना वो 90 के होते हैं। अगर हम रेक्टेंगल है कोई, तो उसमें भी क्या होगा बेटा, रेक्टेंगल में भी सारे के सारे एंगल जो है ना वो 90 के होंगे। देखो ना, ये स्क्वायर है 90, रेक्टेंगल 90, मीन बोथ ऑफ देम हैव 90 डिग्री एंगल एट ईच कॉर्नर। तो दिस इज द सिमिलरिटी, यस स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल रेक्टेंगल। ये हमने सिमिलरिटी देखी दोनों में क्या है, स्क्वायर और रेक्टेंगल में दोनों में 90 डिग्री के एंगल होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू बेटा सेकंड पार्ट। अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल पैरेललोग्राम। यानी कि अब रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में कोई सिमिलरिटी है क्या? इन दोनों में कोई एक सिमिलरिटी है? ये बात ठीक है कि दोनों के दोनों क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल हैज 4 साइड, पैरेललोग्राम हैज 4 साइड। इनमें सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी मैं बताता हूँ बेटा आपको, बताई थी यहाँ पे मैंने कि पैरेललोग्राम क्या होती है। दिस इज द पैरेललोग्राम एंड दिस इज द रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है, ये पैरेललोग्राम है। डिफरेंस तो हमको मालूम चल जाता है कि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल सारे, यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है, डिफरेंस है। सिमिलरिटी ये है बेटा कि इसकी भी ऑपोजिट साइड इक्वल है। ऑपोजिट मीन जो सामने वाली साइड होती है ना उसकी ऑपोजिट दे, इसकी भी ऑपोजिट साइड इक्वल है और इसकी भी ऑपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल।
This is the fact that opposite sides are equal in a rectangle as well as in parallelogram. आपको कॉमन पॉइंट समझ में आना चाहिए। जैसे स्क्वायर और स्पेशल रेक्टेंगल में था कि दोनों में राइट एंगल थे, अब इन दोनों में क्या है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये दोनों में ये सिमिलरिटी है। अब थर्ड पे आ जाते हैं बेटा, A square can be thought of a special rhombus. अब स्क्वायर में और रोम्बस में क्या सिमिलरिटी है बेटा, मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो। स्क्वायर एंड रोम्बस में क्या सिमिलरिटी, क्या सिमिलर चीज क्या है, सेम क्या है इन दोनों में, एक बात दोनों में सेम। Sir, they have same equal sides. Yes, all the sides of both the figures are equal. दोनों में क्या होता है, इनकी सारी साइड इक्वल होती हैं। स्क्वायर में भी सारी साइड इक्वल है और रोम्बस में भी सारी साइड इक्वल है। शाबाश, गुड बेटा, जिसने बोला ना, नाइस, नाइस टू लिसन फ्रॉम यू। जैसे ये होता है ना, स्क्वायर होता है, स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती है, रोम्बस में भी क्या है बेटा, सारी साइड मैंने बनाया था, तो मैं दोबारा बनाता हूँ। रोम्बस में भी यहाँ पे बनाया था मैं, ये रोम्बस, रोम्बस, ठीक है, लेकिन सॉरी, रेक्टेंगल देन रोम्बस। तो रोम्बस में भी क्या है, सारी साइड इसकी ना जो इक्वल ही होंगी इसकी तरफ। सॉरी, ये नहीं रहा, जैसे स्क्वायर में इक्वल है वैसे रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती हैं। स्क्वायर एंड रोम्बस हैव ऑल द साइड इक्वल, ये इनका फैक्टर है। ये स्क्वायर में भी सारी साइड इक्वल है, रोम्बस में सारी साइड इक्वल है। अब डी पार्ट पे आते हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम आर ऑल क्वाड्रिलेटरल। अब ये सारी क्वाड्रिलेटरल क्यों हैं? स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और Sir, because all these four sided polygon made of line segment. Sir, because यस, बिल्कुल ठीक बोला, बिल्कुल ठीक बोला। ईच वन हैज फोर साइड, सबकी साइड फोर होती है। स्क्वायर की फोर है, रेक्टेंगल की भी फोर है, पैरेललोग्राम की फोर है, तो दे आर क्वाड्रिलेटरल। वेरी गुड बेटा, शाबाश। ऑल, ईच वन हैज अ फोर साइड, दैट्स व्हाई ऑल आर क्वाड्रिलेटरल। अब लास्ट पार्ट इसका रह जाता है बेटा, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। स्क्वायर और पैरेललोग्राम में क्या सिमिलरिटी, कोई सिमिलरिटी दोनों में हो सकती है स्क्वायर और पैरेललोग्राम में? स्क्वायर को हमें मालूम होता है ना कि सारी साइड इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम में होता है इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। इसमें सिमिलरिटी ये होगी, इन स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड जो है ना वो पैरेललोग्राम में भी इक्वल है और स्क्वायर में भी इक्वल है। स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती हैं, इट मींस ऑपोजिट साइड तो इक्वल होनी होती है। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट मींस सिमिलरिटी इज दैट स्क्वायर इन स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। दिस इज द सिमिलरिटी। ये क्वेश्चन बेटा 1 और 2 जो ना आपको आज लिख के अच्छी तरह से करने हैं और समझने हैं। एक बार में आपको समझ में आ गया ना, आपके लिए लाइफ में बड़ा बेनिफिशियल रहने वाला है। 10 तक देखना, आपको इतने कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होंगे ना, अब याद करेंगे। ये क्लियर नहीं होगा तो आपको हमेशा अपना डाउट रहेंगे, इसलिए इसको आप आज आपने मेहनत करके ना सारे के सारे कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठा लेने हैं एंड इट विल हेल्प यू इन अ ग्रेट वे। यू विल सी ये कॉन्सेप्ट आपके 10 तक चलने वाले हैं और ये बहुत हेल्प करने वाले हैं आपको। आज आपको ज्यादा टाइम लगा के, ज्यादा एफर्ट करके इसको बात समझना है आपको। और अगर कोई डाउट पड़ता है तो मेरे को उनसे नेक्स्ट क्लास में आपने पूछ लेना है। ये आपको 5.7 के क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको आज करना है, कॉपी में भी करना है और आपके माइंड में ये पक्का भी होना चाहिए। आई थिंक टाइम इज ओवर बेटा, तो ठीक है, जितना हमने कर लिया है, बाकी जो है नेक्स्ट पीरियड मंडे को है, तब डाउट क्लियर करेंगे आपके। किसी को डाउट है पूछो बेटा, अभी जो पूछना चाहते हो। हाँ yes, sir. Sir, what is the definition of trapezium? बेटा trapezium is also a quadrilateral. Trapezium is also a quadrilateral in which one pair of opposite side is equal. उसमें सिर्फ एक पेयर जो है ना वो पैरेलल होता है, अदर साइड पेयर इज नॉट पैरेलल। दोबारा सुन लो बेटा, trapezium is a quadrilateral in which one pair of side is parallel and other pair of side is not parallel. ये डेफिनेशंस बेटा अब मैं आपको लिखवा भी सकता हूँ, बट 6th क्लास में अभी है नहीं ये। अब जब 8th में आती है ना, उसमें पूरे प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन भी है, प्रॉपर्टीज भी हैं। तो ठीक है, आपने पूछ लिया है, मैंने बता दिया आपको।
अपना आइडिया क्लियर कर लेना। मैं दोबारा बोल देता हूँ आपको, ट्रेपेजियम इज क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, अदर इज नॉन पैरेलल। यानी कि एक पेयर तो उनका पैरेलल होता है, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होता। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। Yes, sir. हाँ बेटा, पूछ लिया करो, जो डाउट पड़ता है ना आपको पूछ लिया करो। आई थिंक वी शुड लीव नाउ, ओके, यू हैव नेक्स्ट क्लास। तो जो डाउट पड़ेगा आपको हम नेक्स्ट जो मंडे का पीरियड आ रहा है उसमें क्लियर कर लेंगे। टिल देन बेटा, बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। Bye, sir. बाय बेटा, बाय। Sir, thank you, sir. You're welcome, beta. You're welcome.